Yeah, so we have seen all the data types like we have सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट बूलियन कॉम्प्लेक्स ये सारे डेटा टाइप थे। इसके अलावा फिर हमने कल देखा था स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिटेल में देखा था एंड देन वी आल्सो सॉ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वी सॉ वेरियस data types like list we saw, then tuple we saw, then set, and then finally the dictionary we saw. Okay, so here for a revision, list is basically it is a mutable data type. It is once created, it cannot be changed. Then it is an ordered collection, so indexing is supported, and multiple data types are supported, denoted by the square bracket. Okay. Then second, tuple. Tuple is again the ordered collection. It is index supported. Then it is immutable. So once you have created something, it cannot be changed. No value can be changed, no new value can be added, no value can be removed from it, right? So multiple data types are also allowed and it is denoted by the parentheses, small brackets. Then third is set. It is an unordered collection, so that's the reason index is not supported. Then multiple data types are allowed. Mutable. It is mutable, means values can be changed. Then duplicates are supported and denoted by the curly braces. And the same way dictionary. It is again the unordered collection. Index is not supported. Here the structure is of index and value pair. And then multiple data types are supported in this as well, and mutable. Then this is mutable, so values can be changed at any point of time for any index. Then duplicates are again not supported and denoted by curly braces. So ये हमने सारे data type कल देखे थे. Now a very important thing comes as the conversion between the data. राइट। तो जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं और उनको हमें एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें कन्वर्ट क्यों करना है? बहुत बार ऐसा होता है, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट द वैल्यू वी आर एक्सपेक्टिंग is supposed to be numeric, but by mistake it has been converted to string. For example, um, suppose we have two values and we are taking those values from user. So we have taken input and enter the first number, okay, and then var 2, then input, enter enter the second number, okay. And here now what we do is we are trying to add both numbers. So we are where sum is equal to var 1 plus var 2, and we are printing total is 100. We have given var underscore sum. Okay. तो यहाँ पे हम यूजर से दो वैल्यूज ले, तो यूजर से जब भी हमें कुछ भी इनपुट लेना हो तो हम यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। हमने इसको रन कराया। Now first number 3, second number 4, and we have added both numbers. So it has given number as 34. Why it has given number as 34? Is it correct? No. No, sir. It is not correct. So what should be the ideal answer and what is the possibility of error? ये error क्यों आई है? तो यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप चेक करो तो यहाँ पे हम चेक करते हैं प्रिंट टाइप ऑफ var टाइप ऑफ var 1 comma type of var 2। तो क्या आएगा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो दोनों का अगर टाइप देखोगे, दोनों का अगर आप टाइप देखोगे तो यहाँ पे दोनों के टाइप स्ट्रिंग आ रही हैं। हमने तो यहाँ पे नंबर दिए थे लेकिन ये एक्चुअली स्ट्रिंग आ रही हैं। तो होता क्या है, whenever any input taken from user is always a string। आप यूजर से कोई भी इनपुट ले रहे हैं वो हमेशा एक स्ट्रिंग होता है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो जब भी आप यूजर से कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो पहले आपको, अगर उस वो न्यूमेरिक है तो पहले आपको उसको एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तभी आप उसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, where 1 int is equal to integer of var1 and var2 int is equal to integer of var2। अब हम यहाँ पे var अंडरस्कोर सम करेंगे, तो यहाँ पे var1 ऑफ इंटीजर प्लस var2 ऑफ इंटीजर, एंड अब हम यहाँ पे सम प्रिंट कराएंगे, टोटल इज and var underscore sum. So you can see now it has given the actual output 3 plus 4 is equal to 7, right। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, सिंपली जो var1 और var2 में हमने जो डेटा लिया था, जो वैल्यू ली थी, उसको हमने स्ट्रिंग से इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ओके, टाइप कन्वर्जन मीन्स converting data converting data from one type to another type। okay, that's what is type conversion। तो जब भी कहीं भी ऐसी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंटीजर में होनी चाहिए या फ्लोट में होनी चाहिए, बट वो बाय मिस्टेक कन्वर्ट हो गई है किसी और डेटा टाइप में, तो व्हाट विल डू इज विल कन्वर्ट दैट इनटू द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। सो नाउ यहाँ पे टेक्निकल चीज ये है कि the values can only be converted if they are convertible। अगर वो कन्वर्टेबल है तभी आप उन वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज उन वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे वैर ले लिया है, वैर की वैल्यू ले ली है ABC, राइट। अब अगर हम इस एबीसी को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वेर INT, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इंटीजर वेर, राइट। अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ये एरर देगा, राइट, क्योंकि आप एबीसी को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। आप उन्हीं वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो जो एक्चुअली बाई मिस्टेक दूसरे डेटा टाइप में चली गई हैं, तब आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। आप जैसे यहाँ पे वैर इज इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया 34.58789, राइट। नाउ दिस वैल्यू इज फ्लोट, राइट। आप अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये प्रिंट आप यहाँ पे वैर एंड वैर INT दोनों कराएंगे, तो यहाँ पे इसने 34.789 को इंटीजर में कन्वर्ट करके 34 में डाल दिया, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज अ डेटा टाइप वेयर ओनली नॉन डेसिमल वैल्यूज आर एग्जिस्टिंग, राइट। तो उसने जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हटा दिया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें यहाँ पे दे दिया। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग कन्वर्टेड। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये है अभी मान लो आपको हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है वेर इज इक्वल टू 66, आप इसको क्या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो लेट्स सी, वेर FLT इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ वेर, राइट। अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये फ्लोट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो हम अगर यहाँ पे प्रिंट कराते हैं वेर और वेर अंडरस्कोर FLT, तो यहाँ पे ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो ये इजीली कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्ट हो सकता है। आप अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना चाहें तो वेर अंडरस्कोर STR इज इक्वल टू स्ट्रिंग STR एंड वेर, इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मैं दिया वेर अंडरस्कोर STR, राइट।
तो भी यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आ गया। तो कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यू इंटीजर से या फ्लोट से सारी आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रिंग की जो वैल्यूज हैं वो सारी इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है? इस तरह से अब मान लो हमारे पास कोई टपल है, टपल वैर। अब टपल हमारे पास है 56, 78, 43 एंड 21। ये हमारे पास टपल है। ठीक है, हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे lst वैर किया और यहाँ पे लिस्ट ऑफ, और हमें यहाँ पे टप अंडरस्कोर वैर दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टप वैर एंड प्रिंट lst वैर वैर, ठीक है, आप देखोगे कि हम आराम से हमने टपल से और इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आप लिस्ट से टपल में, टपल से लिस्ट में बहुत आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो। इसी तरह से अब अगर हमें कोई सेट है, इसमें कोई लिस्ट है सपोज lst अंडरस्कोर वैर, और इसको हमने 56, 78, 34, 21, 56, 78, 43, 21, ये हमने हमारे यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट को हम सेट में कन्वर्ट करते हैं। सेट वेर इज इक्वल टू सेट ऑफ lst अंडरस्कोर वेर। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसको आप यूज करके और आप स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने दिया सेट अंडरस्कोर वेर, हम प्रिंट कराते हैं, और प्रिंट हम lst अंडरस्कोर वैर भी प्रिंट करा ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारी पास लिस्ट है, लेकिन ये पूरी नीचे वाली हमारे पास लिस्ट है, लेकिन जब हमने इसको सेट में कन्वर्ट किया तो जितने भी डुप्लीकेट्स हैं इसने रिमूव करके और हमें बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन समझ में आ रहा है सबको? आपस में आप डेटा टाइप को कैसे कन्वर्ट करोगे? सबको क्लियर है? अंकित, विशेष, आरती, अंकित, राज? यस सर। ओके ओके, तो अभी हमारे पास ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमारा ओवर हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम यही काम आगे और फिर से करेंगे। लेट्स सी, थोड़ी बेसिक चीजें और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट हम कैसे लिखेंगे? तो आउटपुट के लिए एक तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हम लगातार देख रहे हैं, राइट, कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हम डिफरेंट वैल्यूज को प्रिंट करके और हम आउटपुट को जनरेट करेंगे, राइट। तो इसमें कुछ और भी हमारे पास फॉर्मेटिंग होती हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम H3 और आउटपुट फॉर्मेटिंग। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में क्या ऑप्शन होते हैं वो हम देखने वाले हैं। प्रिंट स्टेटमेंट ऑप्शंस /H3। ठीक है, तो प्रिंटिंग के स्टेटमेंट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो हम यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो अब मान लो हमारे पास है यहाँ पे var1 इज इक्वल टू 34 एंड var2 इज इक्वल टू 32। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों का सम प्रिंट कराना है। ठीक है, तो दोनों का सम प्रिंट कराने के लिए सिंपली तो हम कैसे करा सकते हैं? सम ऑफ वेर सम ऑफ var1 एंड var2 इज, हमने यहाँ पे दिया var1, सॉरी, यहाँ पे कॉमा var1 प्लस var2। ठीक है, तो ये दोनों का सम यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे var1 और var2 के नाम ना आके जो भी इसकी वैल्यूज हैं वो आए और फिर हमें पूरा आउटपुट दिखाई दे। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट, अब हम यहाँ पे प्लेस होल्डर डालने होंगे। सम ऑफ
अब हम यहाँ पे वेर वन लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें वेर वन की वैल्यू चाहिए। एंड वेर टू भी हमें लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें वेर टू की वैल्यू चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे तीसरी जगह पे हमें चाहिए दोनों का सम, हमने उसको यहाँ से दे दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट फॉर्मेट, जिस ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे वेर वन कॉमा वेर टू कॉमा वेर वन प्लस वेर टू। तो ये वेर वन यहाँ पे पहली पोजीशन पे जाएगा, वेर टू की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे जाएगी, और वेर वन प्लस वेर टू का जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा आपका यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे जाएगा। राइट। सो लेट्स चेक कि क्या होता है। सो यहाँ पे आप देखो, अब ये दिखा रहा है 34, वेर वन की जगह पे 34, वेर टू की जगह पे 32, एंड हमें फाइनल सम दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने आउटपुट को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो। ठीक है। अब इंटरैक्टिव बनाने के ऑर्डर में और भी कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे दिया है उसी ऑर्डर में वो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। ठीक है। तो अगर सपोज आपने ऑर्डर कभी चेंज कर दिया, राइट, बस अब यहाँ पे हमने इस तरह से दिया और ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, हमने वेर वन और वेर टू उठा के लास्ट में रख दिया। राइट, हमने यहाँ पे लास्ट में रख दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि किसको ऑटोमेटिकली कहाँ पे होना चाहिए। तो इसने वेर वन को यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन पे रख दिया, और वेर वेर वन प्लस वेर टू को सबसे पहले रख दिया। फिर वेर वन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे वेर वन, एंड वेर टू यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, तो वेर टू थर्ड वन पे कर दिया। सारी चीजें इसने उल्टी पुल्टी कर दी। ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। राइट। तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट ऑफ, और अब हम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे। एंड अभी पहले हम प्लेस होल्डर डाल देते, फिर हम इंडेक्स डालते हैं कि कैसे हम इंडेक्स डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है वेर वन प्लस वेर टू हमने पहले दे दिया है, फिर हमने वेर वन दे दिया है, फिर वेर टू दे दिया है। ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब यहाँ पे जो आए वो कौन सी वैल्यू आए, वो यहाँ पे वेर वन आनी चाहिए। अब वेर वन यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो सेकंड पोजीशन का अगर हम इंडेक्स काउंट करेंगे तो इंडेक्स क्या होगा, तो इंडेक्स जो जो भी पहली पोजीशन पे जो भी वैल्यू उसका इंडेक्स जीरो रहता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे उसका इंडेक्स वन, पहली पोजीशन पे वो जीरो, जो सेकंड पोजीशन पे वन, जो थर्ड पोजीशन पे वो टू होगा इंडेक्स। तो हम यहाँ पे पहले प्लेस होल्डर पे हमें वेर वन चाहिए, वेर वन का इंडेक्स क्या है, वन, हमने यहाँ पे वन दे दिया। वेर टू का इंडेक्स है टू, राइट, और इसका इंडेक्स है जीरो। राइट। अब हम इस तरह से यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। क्लियर है। इसी तरह से कोई बड़ी वैल्यू भी आप लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो सपोज हमने दिया प्रिंट, यहाँ पे हमने दिया वेर वन इज इक्वल टू 32, एंड वेर टू इज इक्वल टू 90, वेर थ्री इज इक्वल टू 34, एंड प्रिंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ, और यहाँ पे हमने एंड दिस इज, और यहाँ पे हमने दे दिया और कॉमा, देन फॉर्मेट, एंड हमने यहाँ पे दिया वेर, चलो वेर थ्री हमने पहले दे दिया है, फिर हमने वेर वन इंटू वेर टू इंटू वेर थ्री दे दिया, फिर हमने वेर वन दे दिया, फिर वेर टू दे दिया। राइट। अब हमें यहाँ पे तीनों की वैल्यूज डालनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें वेर वन की वैल्यू डालनी है। तो वेर वन कहाँ पे है, जीरो वन टू सेकेंड इंडेक्स पे, वेर टू कहाँ पे है, थर्ड इंडेक्स पे, वेर थ्री कहाँ पे है, जीरो इंडेक्स पे, और मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे। अब हमने इस तरह से किया तो यहाँ पे अब आप देखोगे वेर टू, अच्छा यहाँ पे वेर का वी कैपिटल हो गया है तो हमने वी स्मॉल कर दिया। ओके।
यहाँ पे फॉर्मेट के साथ में डॉट लगेगा। तो जब भी फॉर्मेट हम स्टेटमेंट यूज करेंगे वहां पे डॉट ही लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसने दिखा दिया कि 32, 90 एंड 54 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह से आप अपने आउटपुट को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? नहीं सर, एक एक कोई बार। डाउट है इसमें? हाँ जी, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू, ये हमने सेकंड इंडेक्स कहाँ से पिक करा है इसका? ये टू मतलब तो 32, मतलब वेर वन। यहाँ वेर पे आप वन। इंडेक्स यहाँ पे आप इंडेक्सिंग देखो। यहाँ पे क्या है, जो सबसे पहला वॉट। एलिमेंट है, ठीक है, वॉट इसकी इंडेक्सिंग जीरो। इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। ठीक ठीक है, है। मल्टीप्लीकेशन देन हो गया वन। देन यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी, जो जो सेकंड इंडेक्स है ये मल्टीप्लिकेशन है, ये वेर वन, ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है। मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट। ठीक है, वेर तो वन है हमारा मतलब सेकंड इंडेक्स पे। फॉर्मेट वेर वाले टू है, को जगह से हमने इंडेक्सिंग पिक करी। हाँ, जब भी हम फॉर्मेट यूज करेंगे और इस तरह से हमें प्लेस होल्डर देने हैं तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है अंकित, हाँ जी, ठीक है। क्लियर है सबको, बाकी लोगों को? Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो नाउ विल मूव फर्दर। इसके बाद आते हैं हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि हम पहले से कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम एक हम जो वैल्यू है वो साथ में दे रहे हैं, राइट। तो उसमें हम यहाँ पे न, जैसे यहाँ पे हमने कीवर्ड आर्गुमेंट है, हमने यहाँ पे नेम एंड इस तरह से दिया है, तो हम ये भी दे सकते हैं। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो हम डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। सो ये जो तीसरा टाइप है मोस्टली कहीं यूज नहीं होता है। मोस्टली हम जो पहले दो है हम वही यूज करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से नाम देके भी इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पाइथन इनपुट, तो इनपुट हम देख ही चुके हैं कि हम पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और अगर उन्हें वैल्यू को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट के टाइम पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमें नंबर इनपुट कराने हैं तो हमें वैर वन इज इक्वल टू, और हमें यहाँ पे इंटीजर पहले से ही कन्वर्ट कर लिया हमने और फिर हमने इनपुट इसके अंदर दिया। तो इंटर द नंबर अगर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट var वन एंड टाइप ऑफ var वन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 67 दिया और टाइप यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर टाइप आ गया। ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट के साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेटिंग। क्लियर है सबको इतना? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, हम आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा उसमें चीज़ें और आती हैं तो हम उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, उन ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। और फिर इसके बाद कंट्रोल फ्लो कैसे काम करता है, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल फ्लो कैसे काम करेगा और आप उसमें कंट्रोल फ्लो को कैसे समझेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटर। Before I move further, just wanted to ask if my speed is okay for all of you. स्पीड ठीक है, समझने में आप सब समझ पा रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो? Yes, sir. यस, नो, कुलदीप, अंकित, राज, विशेष? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. ओके। And also, I wanted to inform you that
if you are interested for the internship and visit the office and you can take the inquiry because we have the limited seats for the internship because the client has opened the limited internships only. So it will be completely on first come and first serve basis. So please start inquiring. Please start visiting the institute and inquire about the internship. We are going to start very soon. We have received the project copies and now we are validating and we are making it so that making the documentation so that you all can work on those internships and your work can be started. Okay, so if you are really interested, please get in touch with the institute. Okay, okay. So now we are going to do the operations using operators. So there are different types of operators are there. So there are arithmetic operators, there are comparison operators, logical operators, bitwise operator, assignment operators, and some spatial operators. So you all know about the arithmetic operators. So plus, minus, multiplication, division, modular, then floor division, and the exponent. Are you all aware with all these? जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं? Yes, sir. Okay, so I guess I don't need to tell all these things again. Here, one operator is this modulo division. So modulo division, there is difference between division and modulo division. Can anybody explain that? What is the difference between division and modulo division? Anyone? There are three divisions are there. One is division, another one is modulo division, and third one is floor division. So कोई बता सकता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है? Just for instance. Anyone? Kuldeep, Ankit, Vishesh, Raj, Aarti. कुलदीप कुछ बोलना चाह रहे हो आप? एनीवन कोई छोटी सी चीज है सर मॉड्यूलर डिवीजन तो परसेंटेज ही होगा ना, जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज ओके नहीं मॉडुलो डिवीजन इज नॉट द परसेंटेज एनीवन सर एल्स मॉड्यूलर डिवीजन ना सर रिमाइंडर जितना बचता है उसके लिए यूज करते हैं। डिवीजन का जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलर डिवीजन निकाल के देता है। एंड फ्लोर डिवीजन सर जो वो भी आउटपुट आता है उसको एज एन होल नंबर शो करता है। होल ओके नंबर तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है। ओके यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 में 14 एंड 5 यहाँ पे दो वैल्यूज ली हुई हैं। ठीक है, अब कर क्या रहे हैं हम इस पे कि यहाँ पे कहाँ पे थे हम? हाँ तो डिवीजन की वैल्यू, मॉडुलो डिवीजन की वैल्यू, फ्लोर डिवीजन की वैल्यू देखो तो ये है हमारे पास 2.8 इज डिवीजन, 4 इज मॉडुलो डिवीजन एंड 2 इज द फ्लोर डिवीजन। तो जब 14 को 5 से आप डिवाइड कराओगे, राइट, सो वो 2 टाइम्स डिवाइड होगा। तो जितने टाइम डिवाइड हो रहा है वो है हमारा फ्लोर डिवीजन, राइट, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। अब कितना रिमाइंडर बच रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। फ्लोर डिवीजन सिर्फ ये दिखाएगा कि वो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है। देन मॉडुलो डिवीजन हमें शो करेगा कि रिमाइंडर कितना है। तो अगर हम 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4। Then third thing is 2 point. This is 2.8. This is the actual division, right? So it is showing 2 times ये divide हो रहा है and then
पार्शियली कितने टाइम से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 2.8 है जो पार्शियल नंबर्स आ रहे हैं, तो दैट इज द डिवीजन, राइट। सो डिवीजन में पूरी पिक्चर आ जाती है, मॉडुलो डिवीजन में केवल रिमाइंडर आ रहा है, फ्लोर डिवीजन में केवल कॉफिशिएंट आ रहा है। क्लियर है? Okay. So this is the basic difference between division, modular division and floor division. बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट आप सबको पता है। देन कंपैरिजन ऑपरेटर, सो यू ऑल नो कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, equal to. So equal to is wherever we are taking it for comparison, we need to use the double equal to, right? Double equal to will be considered for equal comparison, right? Then not equal to, greater than, equal to, less than equal to, ये सारे ऑपरेटर होते हैं एंड ये सारे ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर द वन जो कि जब भी हम यूज करेंगे, हमें जहां पे एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है, राइट, सो हम वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, राइट। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, हमारे पास और ऑपरेटर होता है, एंड नॉट ऑपरेटर होता है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? जब दोनों कंडीशन सही है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, राइट। और के केस में क्या है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है 0, दूसरा इनपुट है 0, राइट। फिर एक इनपुट है 0, दूसरा है 1, फिर एक इनपुट है 1, दूसरा है 0, और ये 1 है, दूसरा है 1, राइट। तो अगर आउटपुट अगर हम एंड ऑपरेटर के साथ में यूज करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, और यहाँ पे होगा 1। तो जहाँ पे दोनों 1 है वहीं पे 1 आएगा, अदरवाइज ये 0 आएगा, राइट। एंड और ऑपरेटर में यही चीज, सॉरी, Screen not visible. हाँ 1 मिनट, अभी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. सो तो जहाँ पे दोनों 1 है वहीं पे हमें 1 दिखाई देगा, अदरवाइज हमें 0 दिखाई देगा। लेकिन यही केस अगर हम एंड ऑपरेटर के साथ में करते हैं तो एक भी 1 है तो वहां पे 1 आएगा, एक भी 1 है तो 1 आएगा, अदरवाइज अगर दोनों 0 हैं तो 0 आएगा। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल, इनको हम कंडीशंस में कैसे लगाएंगे? तो इफ सपोज यहाँ पे where 1 is equal to 10 and where 2 is equal to 7, हमने यहाँ पे चेक किया, if where 1 is where 1 divided by 2 is equal to 0 and where 2 divided by 2 is equal to 0, right? Then print both are even number, okay। ये हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कराने की कोशिश करी, और ये हम यहाँ पे एंड कंडीशन के साथ में कर रहे हैं, और यही हम यहाँ पे और कंडीशन के साथ में करेंगे, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे एंड की जगह पे हमने और लगा दिया, बोथ आर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में करा देते हैं, एल्स
नॉट इवन। ओके, और यहाँ पे भी हम एल्स वाले पार्ट में लगा देते हैं कि पता नहीं। ओके, इस तरह से लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने इनको रन कराया। ओके, एल्स में भी यहाँ पे कोलन लगेगा। हमने इनको अब रन कराया, तो अभी यहाँ पे देखो पहले वाले पार्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे नॉट इवन आ रहा है। नॉट इवन मतलब हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वैर 1 डिवाइडेड बाई 2 ये तो 0 हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाई 2 0 नहीं हो रहा है। वैर 2 डिवाइडेड बाई 2 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसने पूरा फॉल्स कर दिया और यहाँ पे इस वाले पार्ट को प्रिंट कर दिया। लेकिन यही चीज जब हमने और के साथ में कराई, तो यहाँ पे और में पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। स्टिल इसने इसको 1 रिटर्न किया, पॉजिटिव रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे और लगाया हुआ है। तो और में एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो पर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको भी सपोज हमने 4 कर दिया और इसको अब हम यहाँ पे डिवाइड करते, तो अब देखो यहाँ पे दोनों में बोथ आर इवन नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे 9 कर देते हैं और यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, अब दोनों ही इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये वाला तो नॉट इवन हुआ ही, इसने भी अपना एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया। पता नहीं, क्योंकि अब ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना ही ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसी में हम क्या करते हैं कि इसी में हम एक कंडीशन ऐसी डालते हैं। कंट्रोल सी हमने यहाँ पे किया और हमने यहाँ पे इसके साथ में चलो नॉट कर दिया। ठीक है, नॉट हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर इवन नंबर। राइट, अब यही चीज यहाँ पे जो पता नहीं रिटर्न कर रही थी, उसी चीज ने यहाँ पे हमें रिटर्न किया बोथ आर इवन नंबर्स। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी करंट स्टेटस है उसका जस्ट अपोजिट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स थी। राइट, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन इसने इस फॉल्स को नॉट ऑपरेटर की वजह से ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही ट्रू में कन्वर्ट हुआ, तो अब इसको एक ट्रू यहाँ पे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे और है। इसको जैसे ही एक ट्रू मिला, तो ये अपने इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, हाँ, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ग्रेट। अब इसी तरह से यहाँ पे आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स जनरली बहुत रेयर यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में आपको। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो काम करते हैं वो बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं। राइट, तो जो भी आप इसमें बिटवाइज ऑपरेटर में जो भी इनपुट देते हो, पहले वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर प्रोसेस करेगा आगे। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने यहाँ पे दिया, अभी हमने यहाँ पे दिया, सिंपली हमने दिया where 1 is equal to, हमने यहाँ पे दिया सपोज 12 एंड where 2 is equal to दिया हमने यहाँ पे 15 दे दिया। ओके, हमने यहाँ पे क्या प्रिंट where 1 एंड where 2। ओके, हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कराया, तो इसने यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे 12 रिटर्न किया। ठीक है, अब वैर 1 और यहाँ पे वैर 1 की वैल्यू 12 है, यहाँ पे 15 है, तो इसने यहाँ पे 12 कैसे रिटर्न करा है? यहाँ पे वैल्यू तो 12 ही आ रही है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम इसकी जगह 17 कर देते हैं, तो क्या होगा? इसको
तो ये वैल्यू 0 हो गई। हमने यहाँ पे 14 किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे 12 आ गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैल्यू कैसे आ रही है? अभी बेसिकली क्या कर रहा है कि ये पहले ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता है बाइनरी के फॉर्म में। तो आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना मालूम है, कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसी को पता है डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा यार, ये तो 8th 9th में सिखाया जाता है आजकल, इवन उससे पहले। नो आइडिया? और सर एंड कंडीशन लगा के ना हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते थे हम लोग। एंड कंडीशन से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी सर, वो ओके चलो मैं बताता हूँ आपको। तो हालांकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस बट स्टिल हम इसको मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सो अब हमारे पास सपोज वैल्यू है 12। ठीक है, अब 12 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड कराना होता है। तो जब 2 से 12 को डिवाइड कराएंगे तो 6 आएगा और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, हम तब तक डिवाइड कराएंगे जब तक कि डिविजिबल वैल्यू 0 नहीं हो जाती, राइट। फिर हमने 6 को 2 से डिवाइड कराया तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर होगा 0। 2 से 3 को डिवाइड कराएंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर होगा 1। देन यहाँ पे ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे तो उल्टे में हमारे पास क्या आ गया, 1100। तो जो 12 का जो बाइनरी है वो 1100 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम 14 का सपोज बाइनरी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 14 का बाइनरी फाइंड आउट करने के में क्या करेंगे, 7 टाइम्स 0, देन 3 टाइम्स डिवाइड हुआ 1 हुआ, फिर 1 टाइम डिवाइड हुआ 1 आया, और फिर 0 टाइम डिवाइड हुआ और 1 आया। तो यहाँ पे इसका जो बाइनरी कन्वर्जन आ गया वो क्या आ गया, 1110। ठीक है, चीज समझ में आई? 12 का बाइनरी 1100 एंड 14 का 1110। समझ में आ गया सबको? जी सर। समझ में आ गया? जी सर। नहीं। सो जब यहाँ पे अब आ गया, अब हम इनका एंड ऑपरेशन कराएंगे। तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, तो ऊपर नीचे रखते 1 1 0 0, और ये है एंड 1 1 1 0। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जहाँ पे एक भी 0 है वहां पे 0 होगा, तो ये 0, ये भी 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो दोनों का जो एंड ऑपरेशन है वो ये आया। ये है हमारा 12 का बाइनरी, ये है हमारा 14 का बाइनरी, और दोनों को हमने एंड ऑपरेशन कराया तो हमें यहाँ पे आया 1100। अब 1100 को फिर से अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, कितना बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1100 ये है, यही है ना। तो वापस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखना चाहते हो तो आप इसको वापस कन्वर्ट करने की भी टेक्निक होती है। तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 टू पावर 0 से राइट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे। सो 2 टू पावर 0 यहाँ पे इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ इज इक्वल टू ये इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिकली 0 1 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 0 हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2 3, इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, सो इज इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू
2 to the power of this, ठीक है। और इसको हम यहाँ से लेफ्ट में हम ड्रैग कर लेंगे, राइट। तो और इसके बाद फिर हम इन सबको ऐड कर लेंगे, तो सम ऑफ दिस इज 12। ओके, तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना समझ में आया, और यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट मोर? कुलदीप, अंकित, राज, विशेष, आरती, जी सर, समझ में आ गया। बाकी लोग, अंकित, राज, विशेष। जी सर, समझ आया। हाँ, समझ में आ गया। ओके, सो इस तरह से आप बाइनरी से डेसिमल एंड डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो आया है तो ये हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, तो बिटवाइज एंड 12 एंड 14 का क्या हुआ, 12 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। तो हम इसी को हम यहाँ पे नीचे लेके आते हैं और बिटवाइज और ऑपरेटर यूज करते हैं। बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या है, यहाँ पे जहाँ पे भी एक भी 1 मिला तो वहां पे 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये इसका हो जाएगा 14, राइट। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे भी ऑपरेशन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट एंड लगाया था, एंड प्रिंट var1 और, सो यहाँ पे हमने और लगाया, और कहाँ गया, पाइप सिंबल var2, तो यहाँ पे इसका 14 आएगा, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेशन समझ में आ गया, बिटवाइज एंड बिटवाइज और समझ में आ गया सबको? सबको, ठीक है। इसके बाद बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है, तो नॉट जहाँ पे 1 होगा वहां पे 0 हो जाएगा, जहाँ पे 0 होगा वहां पे 1 हो जाएगा। देन बिटवाइज एक्सऑर, सो बिटवाइज एक्सऑर जस्ट अपोजिट ऑफ और, राइट। देन लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, तो लेफ्ट में वैल्यूज शिफ्ट करनी है, राइट में वैल्यूज शिफ्ट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो कि बहुत यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास इक्वल टू, जब भी हमें कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल में असाइन करनी है तो हम यहाँ पे जीरो, हम इक्वल टू यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू। कंपैरिजन करना है तो हम डबल इक्वल टू यूज करेंगे। जब सिंगल इक्वल टू यूज करना है मतलब हमें वैल्यू असाइन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक वैर वैर वन लिया है और हमने यहाँ पे दिया 14, राइट। अब यहाँ पे हमने दिया वैर प्लस इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वैर, सॉरी यहाँ पे वैर 1 है, वैर 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वैर 1 इज इक्वल टू वैर 1 प्लस 4। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब वैर 1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसके एग्जीक्यूशन के बाद 18, राइट। यही चीज आप यहाँ पे var1 माइनस इज इक्वल टू में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने 4 किया, देन var1 मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसमें भी यूज कर सकते हो, var1 डिवाइड इक्वल टू में भी यूज कर सकते हो। तो इसको हमने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, फिर var1 और यहाँ पे मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल टू में भी यूज कर सकते हो। तो सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 3 इक्वल टू 3, ठीक है। हम यहाँ पे सबको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम प्रिंट कराएंगे, 1 बाय 1 प्रिंट कराएंगे, प्रिंट वैर 1, ठीक है। अब हर बार हम वैर 1 ही प्रिंट कराएंगे, लेकिन हर बार वैर 1 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। इसीलिए मैं ऑर्डर में प्रिंट करा रहा हूँ, लास्ट में प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो लास्ट में एक ही वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया, तो हमने इसको प्रिंट कराया। अब यहाँ पे देखो, वैर यहाँ पे वैर 1 की वैल्यू 18 हो गई थी, 18 माइनस 4 14, देन 14 इंटू 2 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 14, एंड 14 मॉडलो 3 इज 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मॉडलो डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे वैर 1 की वैल्यू हमने फिर से 14 कर दी, एंड वैर 1
फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, और हमने यहाँ पे 3 दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने यहाँ पे फिर से प्रिंट कराया, प्रिंट var1, तो यहाँ पे 4 टाइम्स डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यूज को यूज कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इसी तरह से लास्ट में यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है तो एक्सपोनेंट भी आप यूज कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पे हमने दिया var1 इज इक्वल टू 3 एंड var1 एक्सपोनेंट इक्वल टू एंड 3 कर दिया, तो 3 टू पावर 3, ठीक है, var1 3 टू पावर 3 27, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर, तो जिसमें होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि दो वेरिएबल हैं, उनको हमें आपस में कंपेयर करना है, राइट। तो अगर वेरिएबल सेम है तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, और वेरिएबल सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे यहाँ पे तो इसके लिए हम यहाँ पे इज और इज नॉट को यूज करते हैं। सो वेरिएबल की दो अलग अलग वैल्यू दी हैं, और यहाँ पे दिया वेरिएबल इज वेरिएबल 1 इज वेरिएबल 2, राइट। तो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे इज नॉट चेक करते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से यहाँ पे list1 एंड list2 यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे दो स्ट्रिंग दी हुई है, उनको इज में कंपेयर किया हुआ है, सो वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से लास्ट वन आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेंबरशिप ऑपरेटर में कोई भी हम हमारे पास जो डेटा टाइप है उसमें हमें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू उस लिस्ट का पार्ट है या नहीं। यहाँ पे ये लिस्ट हमने बनाई है, और इस लिस्ट में हमने चेक किया 25 इन दिस लिस्ट और ए इन दिस लिस्ट। तो 25 इस लिस्ट में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ए इस लिस्ट में है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट। और हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, यू कैन सी नाउ दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, राइट। डिक्शनरी के केस में जब आप इसको चेक करोगे तो डिक्शनरी के केस में ये चीज आपकी इंडेक्स पे अप्लाई होगी, ये जो वैल्यू है वो उस पर अप्लाई नहीं होगी, जो भी आपने इंडेक्स डाला है उस पर अप्लाई होगी, राइट। सो यहाँ पे अगर हम सपोज इस तरह से चेक करते हैं, हमने यहाँ पे प्रिंट और हमने यहाँ पे दिया बनाना बनाना इन माई डिक्शनरी, ओके। अगर हम यहाँ पे ये चेक करते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि बनाना यहाँ पे वैल्यूज में है, बनाना यहाँ पे इंडेक्स में नहीं है, राइट। सो इंडेक्स के केस में ही ये जो इन ऑपरेटर है ये डिक्शनरी में अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज सबको क्लियर है? बुलियन ऑपरेटर भी होता है ना, एक कौन सा? बुलियन ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, कौन सा आप बोल रहे हो? बुलियन ऑपरेटर होता है ना एक, जो Boolean? वो भी ट्रू की वैल्यू बुलियन रिटर्न करता ऑपरेटर नहीं होता है, बुलियन डेटा टाइप होता है। बुलियन इज नॉट द ऑपरेटर, है। Yes, sir. okay. So we'll keep it at this for today, and from tomorrow we'll start the control flow, which is going to be very important session. Do not miss that. And anybody who is interested for the internship, please connect with the office, so you will get the more details on that. Okay, Sir, everyone.